हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड 2 यानी चौथा चैप्टर जो है आधुनिक विश्व 2 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या जो भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम हर एक जो बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब वीडियो स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here. Foundation of United Nations Organization. There is a UNO. There is the most important foundation of United Nations Organization here. The horror of the war made the world leader realize the need for a international organization for a peace. The world leaders such as the British Prime Minister and Western Churchill is a Soviet leader, Stalin and USA President Roosevelt meet at various conferences to decide about their formation of this organization. There is an important, the Soviet leader Stalin and the USA President Roosevelt meet at various conferences to decide about their formation of UNO. There is important, and finally on 24 October 1945 at the conference in the San Francisco, the United Nations Charter was adopted by the member of 50 nations, and the United Nations Organization, there are UNO, was the formed. Since then, 24 October are celebrated every year as a UN Day. There is a 24 October is celebrated every year as a UN Day. All over the world, the UNO is based on the principle of sovereignty and equality all nation. There is the most important things here, the UNA. The main aim of the UNA are the maintain of peace and security in the world, to prevent a future war, to solve the international debt as peacefully, and the promote to international cooperation. That is important. The next point here, objective of United Nations organization here. The like the League of Nations, which was established after World War One, the UNA too had a major objective of maintenance international peace and security. It also had another major object to develop a friendly relation among nations on the basis of equality and achieve a international cooperation in a solving economics, social, culture, and humanitarian problem. That is the most important here. This is a formation here only a cooperation solving economic, social, culture, and humanitarian problem to promote the human rights and fundamental freedoms for a people for the world was one of the aim of the UNA. It was also to act as a common platform for organizing their activity of various nations for the attainment of the objective of the UNA. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना। देखिए
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सिर्फ इतने के लिए किया गया कि पूरे विश्व को जो है शांतिमय जीवन यापन के लिए और नेशन को जो है सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और जो विश्व युद्ध जैसे महाकाल युद्ध लड़ी गई उनसे बचाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन किया गया। और इससे पहले भी संगठन की स्थापना किया लेकिन वो कुछ न कर सका। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं युद्ध की जो है विध्वंसता ने दुनिया के नेताओं को शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत का एहसास कराया। यानी देखा जाए तो जो युद्ध की विध्वंसता थी पूरे दुनिया के नेताओं को जो है एक बात को संकेत किया कि ये बहुत ही विनाशकारी है और इससे जनजीवन और पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एंड सोवियत नेता स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो है रूप में विश्व के नेताओं के विभिन्न सम्मेलन में इस संगठन के जो है बारे में फैसला करने के लिए मुलाकात की। और अंत में 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 50 देशों के सदस्यों द्वारा अपना लिया गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पर 3 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कोशिशों के कारण जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है 50 देशीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर ली गई। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब से दुनिया भर के सभी देश जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी राष्ट्रों की प्रभुता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी सभी को जो है समानता प्रभुता देने के पक्षधर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अब देखिए ये बात यहाँ पर अब गलत साबित हो रहा है। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भी एक संगठन बनाई गई जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोका नहीं जा सका। अब देखिए यूएन भी बनाई गई भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए, लेकिन आज जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है क्या यूएनओ का फर्ज नहीं है कि इस युद्ध को तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत जनजीवन और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो ये देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। कहते हैं युद्ध को रोकने के लिए शायद इसका कहीं भी स्थान नहीं है। जैसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में बनाई गई सुरक्षा के लिए वो भी फेल हो गया, आज यूएनए भी फेल नज़र आता है क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया अभी तक यूक्रेन का युद्ध जो है थमा नहीं है। यदि आगे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य क्या थी। अब देखिए प्रथम विश्व के बाद स्थापित किए गए राष्ट्र संघ की तरह संयुक्त राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य की स्थापित किया गया था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था और राष्ट्र संघ का उद्देश्य मात्र इतना था कि वो विकास, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानवीय समस्याओं को सुलझाना था और ये फेल हो गई। अगर फेल नहीं होती तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। और आज देखिए संयुक्त राष्ट्र भी फेल नज़र आ रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी आज फेल इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि आपके समक्ष अभी जो 1 साल से जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है आज तक नहीं थमा और कहते हैं धीरे धीरे जो है विनाश का रूप धारण करता जा रहा है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि यूएनओ का जो है कर्तव्य जो था वो कर्तव्य कहाँ गया। क्या यूएनए सिर्फ बड़े राष्ट्रों के लिए ही काम करती है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये विशेषज्ञ भी मानते हैं कि शायद यूएनए का उद्देश्य सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्रों का ही संरक्षण देना है। कहते हैं युद्ध की शांति बनाए रखना शायद उनके बस में नहीं है और ये साबित भी हो रहा है। जैसे पहले से राष्ट्र संघ असफल हुई, आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है असफल नज़र आ रही है। क्योंकि अगर बात यहाँ पर करें संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य की तो देखा जाए इसका मेन उद्देश्य होता है शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, इसीलिए इसकी स्थापना किया गया था और इसका भी समानता के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना उद्देश्य था।
और आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानवीय समस्याओं को सुलझाना था। जब यूक्रेन की समस्या है दूसरे देशों के साथ, तो आज यूएन क्यों नहीं उसको जो है सुलझाने की कोशिश कर रही है, और क्यों जो है ये विनाशकारी लीला जो है वहाँ के जनजीवन कितने त्रस्त हो रही है। शायद अब यूएन को भी इस बात का जो है एहसास नहीं है। दुनिया के लोगों के लिए मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की बढ़ावा देना जो है राष्ट्र संघ की मेन उद्देश्य था, लेकिन आज ये उद्देश्य खो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक था, और यह भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों के विभिन्न कहते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों में तालमेल करने के लिए जो है राष्ट्र संघ ने एक आम मंच के रूप में कार्य किया। दोस्तों कहते हैं बहुत सी ऐसी बातें होती है, सिर्फ मैं एक ही बात जानता हूँ कि जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सिर्फ कागजों और कहते हैं विचारों में ही रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसको कहीं नहीं देखा गया। अगर हम बात करें राष्ट्र संघ की, तो राष्ट्र संघ का जो बनाया गया इसलिए बनाया गया क्योंकि ये विश्व में शांति स्थापना के लिए था और युद्ध जैसे विनाशकारी लीला को रोकने के लिए था। इवन कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का जो स्थापना हुआ इसी उद्देश्य से हुआ, लेकिन आज जो है यूएन यहाँ पर फेल नज़र आ रहा है क्योंकि यूक्रेन का युद्ध अभी तक थमा नहीं है, और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये जो है तृतीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा, और बन भी रहा है। कहते हैं ये धीरे धीरे जो है इसमें अमेरिका वही नीति अपना रही है जो प्रथम विश्व युद्ध में अपनाई थी, यानी हथियारों का सप्लाई, और वो जो है अपना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की होड़ में लगी हुई है। और वो नीति शायद यहाँ के जो राजनीतिक नेता है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नीति क्या अनुसरण किया जा रहा है, और आपको भी इस नीतियों का अनुसरण में नहीं करना है और सही रास्तों पर चलने की कोशिश करना है। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक बात का अनुसरण करना पड़ेगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा, और प्लस अगर बाद में यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र भी ना आए। तो इसलिए अच्छा है कि अपने मोबाइल में जो है तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत तकलीफ नहीं करना है। आपको जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का उसको सिर्फ आपने दबा देना है, और दबाते ही आपके मोबाइल में चैनल सेव हो जाएगा, और सेव होते ही आपके समक्ष जो होगा जो है यूट्यूब के पेज जो है आपको ये होम पेज मिलेगा, जहाँ पर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है। प्लस अगर आप इसको चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, या जो है क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो इसका भी प्रावधान है। यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहाँ पर आप जिस क्लास में उसमें रिसर्च करके जो है आप अपना जो है अच्छे पेपर की तैयारी कर सकती हो। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बातें कहना चाहते हो, कुछ आप जानना चाहते हो, या कुछ आप शिकायत करना चाहते हो तो इसका भी प्रावधान है, आप कमेंट कर सकते हो।